اب میرے دوستوں بات یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ ایک شخص کی بات دو مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے، دوسرا اس کا مکان خالی ہے، اس پر شہر کے اندر قربانی کی جانور عید سے پہلے کرنا درست ہے یا نہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی آدھا ہوگی یا نہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، کہ میں نے ابھی جو پڑھا ہوں، ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل الایمان بندوں میں سے تھے، جو ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے انہیں آزمائش اور امتحان میں کامیابی عطا فرمایا، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں اپنے آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ آئیے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اب میرے دوستوں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم ہو، یعنی اس وقت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، اب یہ اندازہ لگا لیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے لیے شرط یہ کہ زکوٰۃ کا سال کا گزارنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت میں کہ 2 لاکھ روپے ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ آپ کی نقدی رقم، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نقدی رقم 2 لاکھ ہے، آپ کے گھر میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ گھر کے دیگر سامانوں میں سے کچھ سامان ہے، آپ کے استعمال میں گاڑی ہے، یا پھر ایک مکان ہے، ایک مکان کے علاوہ آپ کے دیگر مکان، دوسری مکان آپ نے کرائے کے لیے رکھے ہیں، تو دوسرا مکان بھی آپ کے پاس ہو گئے، یعنی آپ کی گھر کے اندر استعمال سے زائد جو سامان گھر کے اندر ہے اس کو بھی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی برابر ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور آپ کے پاس نقد اتنی رقم ہو کہ بھائی 20,000 22,000 روپیہ اس سال کو حصہ دے رہے ہیں، تو 22,000 روپیہ آپ ایک حصہ میں دے سکتے ہو، آپ ایک حصہ کر لیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو میرے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کی تہائی مال سے قربانی کی جا سکے گا، اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر قربانی کی دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پر جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ
माल, रुपया, माल तिजारत या दीगर सामान हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। तिजारत की माल है, फैक्ट्री है, कारखाना है, या कोई दीगर तिजारत की सामान उसके पास है। एक शख्स के पास दो मकान है, एक मकान उसकी रिहाइश का है, दूसरा उसका मकान खाली है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक मकान उसका अपने रिहाइश का है, दूसरा मकान उसके पास खाली पड़ा हुआ है, दूसरा प्लाट है उसके पास, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, जबकि उस खाली मकान की कीमत 52.5 तोला चांदी के मालियत के बराबर हो। इस वक्त में मेरे दोस्तों आजकल 60 गज प्लाट की कीमत इस वक्त में 50-50 लाख ये औरंगी टाउन के अंदर है। कराची शहर में दीगर जगहों में आप देख लें कि 60 गज जगह की कीमत 70 लाख 80 लाख में पहुंच गए। एक मकान उनकी रिहाइश की है, दूसरा प्लाट उनके पास पड़े हुए, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरीके से एक मकान में वो खुद रहता है और दूसरा मकान किराए पर उठाया, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अलबत्ता इसके जरिया माज भी यही मकान का किराया है, तो ये भी जरूरियात जिंदगी में शुमार होगा, इस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगी। हाँ, इसके लिए बाकी कुछ नहीं है, और उसकी जिंदगी जरिया माश सिर्फ यही मकान है, आधा प्लाट, उसी से उसका घर बार चलाते हैं, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक आम इस्तेमाल किया, दूसरे जायद, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। किसी के पास 2 प्लाट है, एक उसकी सुकूनत के मकान के लिए और दूसरा जायद है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है कि उसकी दूसरा प्लाट की कीमत 52.5 तोला चांदी के मालियत के बराबर हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब औरत का महर मुअज्जल, यानी अगर इतनी मालियत का हो कि उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, या सिर्फ वालिदैन की तरफ से दिया गया ज़ेवर या इस्तेमाल से जायद कपड़े निसाब की मालियत को पहुंचे हो। बड़े बेहतरीन कपड़े आजकल, गरारा शरारा, बहुत सारी किस्म की चीजें एक लाख 1.5 लाख कीमत की होते हैं, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स मुलाजिम है, उसकी माहाना तनख्वाह से उसकी आल व याल की गुजर बसर हो सकती है, बस अंदाजा नहीं हो सकते कि इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, बल जबकि उसके पास कोई और मालियत ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। एक शख्स के पास जरिया राजिया है, जिसकी पैदावार से उसकी गुजर औकात होती है, वो जमीन उसकी जरूरियात में से समझी जाएगी। एक शख्स की, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। एक शख्स के पास हाल जुतने के लिए बैल या दुधियारी गाय भैंस के अलावा और मवेशी इतने हैं कि उनकी मालियत निसाब को पहुंचती हैं, यानी 52 तोला चांदी को पहुंच जाती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स साहिब निसाब नहीं, ना कुर्बानी उस पर वाजिब है, लेकिन उसने शौक से कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो गई। अब मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। सही कौल के मुताबिक बच्चे और मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं होते। अब आइए मेरे दोस्तों, कुर्बानी का वक्त बकरा ईद की कब होती है, कितना दिन है कुर्बानी का वक्त, कि बकरा ईद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक है, आफताब गुरूब होने से पहले यह कुर्बानी का वक्त। इन दिनों में जब चाहे कुर्बानी कर सकता है, लेकिन पहला दिन अफजल है, फिर 11वें दिन, फिर 12वीं तारीख को। सबसे पहले दिन अफजल है, दूसरे दिन उसकी बाद, तीसरे दिन उसकी बाद। हमारे यहां तो माशाल्लाह भाई पहले दिन बड़ी रेट होता है, कोई 50,000 1 लाख, इसके जितना बड़े जानवर है इतना बड़ी उसकी डिमांड है जबा करने वालों का भी। दूसरा दिन थोड़ी सी कम, तीसरा दिन उससे ज्यादा कम।
शहर के अंदर कुर्बानी की जानवर ईद से पहले करना दुरुस्त है या नहीं कि नहीं? शहर में ईद से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने ईद से पहले जानवर ज़ब्ह कर लिया तो यह गोश्त का जानवर हुआ, कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, यही चीज अगर देहात में, गांव देहात में है जहां ईद की नमाज नहीं होती, ईद के दिन सुबह सादिक तुलू हो जाने के बाद कुर्बानी करना दुरुस्त है। यानी पहाड़ी इलाका में रहते हैं जहां शहर से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मुनक़ते हैं, इसी जगह पर। एक बात यह भी है कि अगर शहरी आदमी खुद तो शहर में मौजूद है मगर कुर्बानी की जानवर देहात में भेज दी और वहां सुबह सादिक की बात कुर्बानी हो जाए तो दुरुस्त है। अब आइए चौथी नंबर मसाइल, यानी 10, 11, 12 की शाम तक, इन 3 दिनों के दौरान रात के वक्त कुर्बानी करना भी जायज है लेकिन बेहतर नहीं है। अगर इन 3 दिनों के अंदर कोई मुसाफिर अपने वतन पहुंच गया या उसने कहीं इकामत की नीयत कर ली और वो साहिब निसाब है तो उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब होगी। एक बात यह है कि जिस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है उसके लिए उन दिनों में कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करना चाहिए, यानी अगर इतनी रकम सदका खैरात कर दे तो कुर्बानी आदा होगी या नहीं, यह शख्स गुनहगार होगा। जिस शख्स के जिम्मा कुर्बानी वाजिब थी और उन 3 दिनों में उसने कुर्बानी नहीं की तो उसकी बात कुर्बानी करना दुरुस्त है यानी कि नहीं है? दुरुस्त नहीं है। उस शख्स को तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए और कुर्बानी की जानवर की मालियत सदका खैरात कर दे। कुर्बानी उनकी वाजिब थी, उन 3 दिनों में उसने कुर्बानी नहीं की तो उसकी बात कुर्बानी करना उसके लिए दुरुस्त है या नहीं है कि नहीं है? उसके ऊपर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। उस शख्स को तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। कुर्बानी की इन दिनों में उसने कुर्बानी क्यों नहीं की और कुर्बानी की जानवर को सदका कर दे, खैरात कर दे। एक शख्स ने कुर्बानी की जानवर बांध रखा था मगर किसी उज़र की बिना पर कुर्बानी की दिनों में ज़ब्ह नहीं कर सका तो उसका अब सदका कर देना वाजिब है या नहीं? ज़ब्ह करके गोश्त खाना दुरुस्त है या नहीं? कि शख्स को सदका कर देना उसके ऊपर वाजिब है। कुर्बानी के जानवर बन रखा है मगर किसी उज़र की बुनियाद पर उसने ज़ब्ह नहीं कर सका तो उसको सदका करना, उस जानवर को सदका कर देना वाजिब है और फिर ज़ब्ह करके उसका गोश्त खाना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। अब यह है कि भाई बाज़ लोग मौलवियों के जरिए से जानवर ज़ब्ह कराते हैं या दूसरे लोगों के जरिए से खुद डरता है। इसके मुताल्लिक क्या मसला है कि कुर्बानी की जानवर खुद अपने हाथों से ज़ब्ह करना मुस्तहब है, लेकिन जो शख्स ज़ब्ह करना ना जानता हो या किसी वजह से ज़ब्ह ना करना चाहता हो तो उसे ज़ब्ह करने वाले के पास मौजूद रहना बेहतर है। जो ज़ब्ह कर रहा है उसके बाद मौजूद रहना बेहतर है। कुर्बानी के जानवर ज़ब्ह करते वक्त ज़बान से नियत के अल्फाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि दिल में नियत कर लेना काफ़ी है। कहा कि भाई ज़बान से कोई चीज़ पढ़ना चाहिए नहीं, तो कहें फरमाते हैं कि भाई ज़बान से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल से नियत कर लें, दिल से नियत कर लेना भी काफ़ी है। और बाज़ दुआएं जो हदीस शरीफ से मनकूल है वो पढ़ना क्या है भाई? मुस्तहब है। अगर नहीं आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहकर ज़ब्ह कर दें।
अब किसी दूसरे की तरफ से नियत करना कुर्बानी में नियाबत जायज़ है, यानी जिस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है, जिस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है, अगर उसकी इजाज़त से या हुक्म से दूसरे शख्स ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो क्या जायज़ है? क्या कि यह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर किसी शख्स की हुक्म की बगैर उसकी तरफ से कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं होगी। इजाज़त दे तो जायज़ है, और अगर इजाज़त नहीं दी तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स को उसकी हुक्म की बगैर शरीक किया गया तो किसी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। शरीक की बगैर, हुक्म की बगैर उसको, यानी उसकी हुक्म के बगैर शरीक किया गया, यानी हिस्सेदार है भाई, चार बंदों ने जानवर खरीदे, अब बगैर मशवरे की बीच में एक बंदे को और ले लिया तो कि किसी भी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। अब ये एक बात है कि आदमी की जिम्मा अपने औलाद की तरफ से कुर्बानी करना जरूरी है या नहीं। आदमी की जिम्मा अपने औलाद की तरफ से कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। अगर औलाद बालिग और मालदार हो तो वो खुद करे कुर्बानी, वरना औलाद की तरफ से कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह ने तौफीक दी है, सबके नाम पे कर दे, बहुत बड़ी सवाब की बात है। हर बाल में एक ने किया, हर ऊन पे एक ने की है, और कल क़यामत के दिन में तुम्हारे लिए सवारी बन जाएंगे। इसी तरह मर्द के जिम्मा बीवी की जानिब से कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। मर्द के तरफ से अपने बीवी के नाम पे, बीवी की जानिब से कुर्बानी करना लाजिमी नहीं है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो अपना बीवी की जानिब से भी कर लें, अपने औलादों की तरफ से करें। और अगर बीवी साहिब निसाब हो तो उसके लिए अलग कुर्बानी का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन आप मेरे दोस्तों, बीवी साहिब निसाब है, अब उसकी तरफ से पूरे जानवर का कुर्बानी वाजिब है, एक हिस्सा करना वाजिब है, पूरा जानवर नहीं। लोग यही समझते हैं कि भाई कुर्बानी वाजिब है, तो कुर्बानी बाप के ऊपर वाजिब है, तो बाप कर रहे हैं कुर्बानी, उनके पास और तौफीक नहीं है, तो एक हिस्सा ले लें, एक बकरा ले लें, एक दुम्बा ले लें, जो उनके पास तौफीक है वो अपने तौफीक के मुताबिक कुर्बानी करें। ये लाजिमी नहीं है। बाज़ लोग कि भाई उनके ऊपर कुर्बानी, घर के अंदर इतनी सामान है कि 52 तोला चांदी से भी ज़्यादा है, उनकी कई प्लाटें हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते हैं कि भाई पूरे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकता तो कुर्बानी करना बेकार है, नहीं करते हैं, नौजुबिल्लाह, तो वो भी गुनाहगार होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आप पूरे जानवर नहीं तो एक बकरा का कुर्बानी कर लें। आप पूरे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं तो एक हिस्सा कर लें। आप मदारस, किसी मदारस में जाके आप हिस्सा ले लें। बड़े बड़े मदारस में जो है ना कुर्बानी, हिस्से में कुर्बानी कर सकते हैं आप, इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं आप। अब जिस शख्स को अल्लाह ने तौफीक दी वो अपने वाजिब कुर्बानी के अलावा अपने मरहूम वालिदैन और दीगर बुजुर्गों की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। कुर्बानी वाजिब हो, अपने तरफ से भी कुर्बानी किया, अपने बुजुर्ग वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी कर दी, इसका बहुत बड़े अजर और सवाब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की भी हम पर बड़े एहसानात और हुकूक हैं। इसी तरीके से खुलाफाए राशिदीन की, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप अपने जानिब से कुर्बानी की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जानिब से भी कुर्बानी कर दें, अल्लाह के रसूल की जानिब से भी कुर्बानी करें। कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है? अब आइए, बकरा है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, उसके बाद ऊँट है, ऊँटनी है, ये कुर्बानी दुरुस्त है। इससे अब आइए, एक जानवर में 7 हिस्सा हो सकता है। मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, ऊँट, 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें, यह भी दुरुस्त है। बकरा
दुम्बा दुम्बी ये एक हिस्सा है ना। अब बाज़ वक़्त में लोग ऊंट लेते हैं या गाय या भैंस वगैरह लेते हैं तो इसमें अकीका का हिस्सा भी डाल सकते हैं। क्या इसमें डालना जायज़ है? बिल्कुल डालना जायज़ है। अब 7वां हिस्सा से कम ना हो। बात यह है कि भाई यह भी शर्त है कि सबकी नीयत कुर्बानी या अकीका की हो, कुर्बानी या अकीका की नीयत हो। सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की नीयत भी सही ना हुआ तो किसी का भी कुर्बानी सही नहीं होगी कि भाई कुर्बानी किया इसमें गोश्त कम है। बाज़ वक्त इसे हमने देखा, भाई कुर्बानी की गोश्त लेके लड़ाइयाँ भी हो जाती है कि भाई हमें एक टांगे दे दो, भाई सारे काटो, काट के सबको हिस्सा कर दो, तकसीम कर दो। और कुर्बानी की गोश्त तकसीम करते वक्त उज़न करके तकसीम करना ज़रूरी है। यह हिस्सेदारों को सबको बैठा करो, सबसे पहले गोश्त को अलहदा कर लो, फिर हड्डियों को अलहदा कर लो, उसकी बाद पाया वगैरह सब मेरे दोस्तों उसी वक्त में जलाकर जो है ना उसको साफ सुथरा करके उसको सबको टुकड़ा कर दो। किसी के दिल के अंदर कोई बुराई नहीं आना चाहिए, सबको बराबर के हिस्सा कर दो और उज़न करके हिस्सा करने चाहिए। अगर किसी ने कुर्बानी की गाय खरीदी और खरीदते वक्त यह नियत थी कि दूसरे लोगों को भी इसमें शरीक कर लें और बाद में दूसरों का हिस्सा रख लिया तो यह दुरुस्त है, यानी कि बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई मैंने ले लिया, बाद में किसी को और हिस्सा में डाल लेंगे, यह नियत कर लिया, उन्होंने बाद में किसी को शरीक में ले लिया तो यह दुरुस्त है। लेकिन अगर उसने अकेला नियत कर ली कि नहीं भाई जो है ना इसको जानवर खरीद रहा हूं, हमें किसी को हिस्सा नहीं देना, मैं अपने तरफ से अपना औलादों की तरफ से कर लेंगे, तो उन सूरतों में हिस्सा नहीं कर सकते, उसमें शरीक नहीं कर सकते। लेकिन नियत के ऊपर है बात। अगर गाय खरीदते वक्त दूसरे लोगों को शरीक करने की नियत नहीं थी बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नियत थी, मगर आप दूसरों को भी शरीक करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि आया उस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है, यानी उस शख्स की कुर्बानी वाजिब है। अगर वाजिब है तो दूसरों को भी शरीक कर सकता है, शरीक कर तो सकता है मगर बेहतर नहीं है, शरीक कर सकता है लेकिन बेहतर नहीं है। अगर उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दूसरों को शरीक करना दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर यह देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी या नहीं। अगर बोलते नहीं है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दूसरों को शरीक बिल्कुल किसी तरीके से किसी को शरीक नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो शरीक कर सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया, उसने दोसा खरीद लिया, फिर इत्तेफाक से पहला भी मिल गया, तो अगर उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब थी तब तो वो सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी उसकी जिम्मा है, और अगर वाजिब नहीं थी तो दोनों जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी। कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं थी तो दोनों कुर्बानी करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, वो मालिक निसाब थे, तो एक जानवर की कुर्बानी करे। अब उम्र कितनी हो कि बकरी 1 साल की हो, गाय 2 साल की हो, ऊंट 5 साल की हो, दुम्बा दुम्बी 6 महीने का भी अगर हो गया लेकिन देखने में परवा मोटा नजर आते हैं, तो 6 माह से भी भेड़ या दुम्बा 6 महीने से जायद का भी हो, तो इतना परवा मोटा हो कि वो देखने में साल का लगते हैं, तो उससे भी कुर्बानी जायज है। अब मेरे दोस्तों, जो जानवर अंधा या काना या उसकी एक आंख की तिहाई रोशनी उससे जायद जाती रही, या एक कान तिहाई या तिहाई से ज्यादा कट गया हो, यानी 2 हिस्सा से ज्यादा, तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जो जानवर इतना लेगड़ा हो कि सिर्फ 3 पांव से चलता हो, चौथा पांव जमीन पर रखता ही नहीं बिल्कुल, या रखता है मगर उससे चल नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है।
4 पाँव में एक पाँव से बिल्कुल पाँव जमीन में भी नहीं रखता है, या चलता है लेकिन वो जमीन पे रख के चलते नहीं है, इससे जानवर से कुर्बानी जायज नहीं है। जानवर इतना दुबला हो कि उसकी हड्डियों में गूदा तक ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इतना दुबला हो गया भाई, उसकी सारे पसलियां नजर आ रहे हैं, उसकी गूदा तक नजर आ रहा है, गोश्त तो नजर ही नहीं आ रहा भाई, पूरे उसकी पसलियां नजर आने लगी है, इतना कमजोर है। तो ऐसे जानवरों से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर की दांत बिल्कुल ना हो या ज्यादा दांत जड़ गई हो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। आप दांत देखते हैं भाई, 2 दांत, भाई 3 दांत का भी हो, 4 दांत का हो जाए। और देखें बाज़ वक़्त में ऐसे भी होता है कि भाई दांत निकल रहे, एक दांत गिर गया, दोनों दांत गिर गए, एक दांत थोड़ी सी निकल गई, एक दांत निकल रहा है, तो सूरत में भी कुर्बानी है। बाज़ लोग मेरे दोस्तों ये समझते हैं कि दोनों दांत नहीं हुआ, 2 साल जब पूरे हो जाती हैं, पूरे होने के बाद दांत गिर जाती हैं, गिरने के बाद एक निकल पड़ी है और एक निकल रहा है, तो उन सूरतों में उससे कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर सिर्फ ऊपर से खोल उतरा है, अंदर का कोई गोदा, अंदर का गोदा बाकी है तो कुर्बानी दुरुस्त है, अंदर का गोदा नहीं टूटा। अगर जड़ी से निकल गई हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। खस्सी जानवर का कुर्बानी बिल्कुल जायज है, बल्कि अफजल भी है। अल्लाह के रसूल ने खस्सी को बकरे से जो है ना कुर्बानी की है। जिस जानवर की खारिश हो तो अगर वो खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक महदूद है तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया हो और जानवर उसकी वजह से लागिर और दुबला हो गया तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। पिछले 2-3 साल पहले ऐसे जानवर आया कि उसकी जिस्म के अंदर दाना हो गई और वो दाना उसकी गोश्त तक असर कर गए और वो जानवर की गोश्त जहरीले बन गए, तो ऐसे जानवर से कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। अगर जानवर खरीदने के बाद उसमें कोई ऐब ऐसे पैदा हो गया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो अगर ऐसे शख्स साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो उसकी जगह तंदुरुस्त जानवर खरीदकर कुर्बानी करे। और अगर उस शख्स से जिम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो वो उस जानवर की कुर्बानी कर दे। अब ये बात भी है कि कुर्बानी पहले सही सालिम था, मगर जबा करते वक्त उसको लेटाया तो उसकी वजह से उसमें कुछ आयब पैदा हो गया, तो उसका कोई हरज नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो गया। अब कुर्बानी का गोश्त मेरे दोस्तों शरीकदार है तो उसको वजन करके उसको तकसीम करना। कुर्बानी की खाल अपने इस्तेमाल के लिए रख सकता है, किसी को हादिया भी कर सकता है, लेकिन अगर उसको फरोख्त कर दिया तो उसकी पैसे ना खुद इस्तेमाल कर सकता है ना किसी गनी को देना जायज़ है, बल्कि किसी गरीब पर सदका करना वाजिब है। अब कुर्बानी की खाल की पैसे मस्जिद की मरम्मत में या किसी और नेक काम में लगाना जायज़ नहीं है, बल्कि किसी गरीब को उनका मालिक बना देना ज़रूरी है। अब मेरे दोस्तों कुर्बानी की जानवर के अंदर कितनी चीज़ें हराम हैं ये मैं अभी इंशाल्लाह अनकरीब आपको बताने जा रहा हूँ।